हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल EHS नॉलेज। आज हम नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जनवरी 2026 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस साल की थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, यानी कि रोड सेफ्टी इज़ लाइफ सेफ्टी। सो आगे हम देखते हैं सर्कुलर which is issued by the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, MORTH. They have issued to all stakeholders and road transporters and road users about celebration and observance of National Road Safety Month 2026, started from 1st January to 31st January 2026. So they have appealed to celebrate and take the seminars, programs and workshops for the all road users, including eye checkup and advocacy programs. So next we will see the background of the road safety month. Background is India observed road safety week every year since 1989. Due to increasing road accidents and fatalities, the Ministry of Road Transport and Highways, MORTH, decided to extend the awareness campaign from 1 week to an entire month, and so the January was declared as National Road Safety Month, which is started in 2021. So friends, 1989 में अपना रोड सेफ्टी वीक चालू हो गया, and उसके बाद considering the accident percentage and fatalities, government has extended this week to entire month of each January of the beginning of the year. So friends, this is the background about road safety month. So key objectives of this road safety month is to create the awareness about road safety and traffic rules, to reduce the road accidents and injuries and fatalities, encourage use of helmets and seat belts, prevent the overspeeding, drunk driving and use of mobile phone while driving. So हमारा ऑब्जेक्टिव्स ये कैंपेन के पीछे ये है कि अपना अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो होना चाहिए, जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या फैटेलिटीज़ होते हैं वो रिड्यूस होना चाहिए। सो दूसरा चीज़, फॉर द टू व्हीलर्स क्रैश हेलमेट्स पहनना ज़रूरी है, एंड सीट बेल्ट्स फॉर दी फोर व्हील ड्राइवर्स, एंड टू प्रिवेंट द ओवर स्पीडिंग, ड्रंक ड्राइविंग एंड यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग्स। अभी हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है वाइल ड्राइविंग द टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स। तो इसके बारे में भी अपना अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, ताकि बहुत सा टाइम अपना माइंड डाइवर्ट होता है और उसके बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द रोड एक्सीडेंट्स। तो रोड एक्सीडेंट्स जब होता है तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड व्हाट इज़ द परसेंटेज एस्टिमेटेड प्रेजेंस इन क्रैशेस। So first one is the human factor, which contribute the 95% of the for happening the accidents. The key examples are overspeeding, distractions, drunk driving and fatigue, या जब बीमार कोई है और वही ड्राइविंग कर रहा है तो उसके बारे में भी एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है रोड and environment factor, which contribute the 45% of the road accidents. Some of the examples are the potholes and poor lightings और bad weathers। कभी कभी क्लाइमेट्स ख़राब होता है, डस्ट जनरेट होती है या विंड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उस टाइम अपना विजिबिलिटी कम रहता है, या कभी कभी आइस फॉल होता है तो विजिबिलिटी कम रहते हैं। तो ऐसे केस में एक्सीडेंट्स होते हैं। So this is 45% for the road and environment factors. And last is the vehicle failure. It is up to only 2%
of accidents happens, and the key examples are the blowouts या कभी कभी टायर फटने से एक्सीडेंट्स होता है. सो इसमें से हम देखेंगे तो देर इज़ अ ह्यूमन फेल्यूर or human factor is involved in the most of the accidents, which needs to be corrected, or we have to change our mentality and minds while driving the vehicles and heavy vehicles or four wheelers, light vehicles. Now the key activities during the month, these are the just guidelines. You can increase the more activities, or which activities are suitable to our clients or organizations or the voluntary bodies. Now some of the activities we can plan, like awareness campaign and educational program in schools and public places, and traffic rule educations and enforcement, then workshops, seminars and trainings to drivers and youth, media outreach through social media, radio and local newspapers, community events, poster and quiz competitions, eye checkups and health checkup program to drivers and operators, distribution of road safety pamphlets and education materials, then vehicle fitness and safety checks, installation of safety signages and road markings. So ये काफ़ी एक्टिविटीज़ ले सकते हैं. अवेयरनेस कैंपेन लेना ज़रूरी पड़ता है, या अपने प्रोग्राम स्कूल या कॉलेजेस में आप अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं. दैन ट्रैफिक रूल के बारे में एजुकेशंस एंड एनफोर्समेंट बाय द RTOs, दे कैन प्लान द एक्टिविटीज़. दैन वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स टू ड्राइवर्स एंड यूथ. बेसिकली उनका एजुकेशन, ड्राइवर का एजुकेशन कम होने के नाते बहुत बार वो फॉलो नहीं करता है, या उसको ट्रैफिक साइनेजेस की जानकारी नहीं रहती है, तो उस टाइम उसको पीरियोडिकल ट्रेनिंग्स उसमें देना ज़रूरी पड़ता है. देन ये जो प्रोग्राम्स रहते हैं उसका मकसद क्या है, इसके बारे में अपना सोशल मीडिया भी काफ़ी तेज़ रहता है, जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है या यूट्यूब है, तो उसके माध्यम से आप ट्रेनिंग अवेयरनेस या रोड सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में आप बहुत से एजुकेशंस दे सकते हो. एंड कम्युनिटी इवेंट्स, या इस महीने में हम लोग पोस्टर या क्विज कॉम्पिटिशन्स भी अरेंज कर सकते हैं. देन आई चेकअप्स एंड हेल्थ चेकअप्स फॉर द ड्राइवर्स एंड ऑपरेटर्स, उनका अरेंज करना ज़रूरी है. स्पेशली ड्राइवर्स, उसका आँख में कोई प्रॉब्लम्स है या उसको नंबर का कोई इशू है, तो कभी कभी आगे जो दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स है या कोई व्हीकल्स है या कोई आदमी लोग जा रहा है, तो उनको नज़र नहीं आने के कारण भी एक्सीडेंट्स हो सकता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड सेफ्टी पैम्पलेट्स, ये अपना एजुकेशनल लेवल पे पैम्पलेट बना के आप पब्लिक में इशू कर सकते हैं. देन व्हीकल फिटनेस, व्हीकल का कंडीशंस मेंटेन होना चाहिए, उसका रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए, इसके बारे में भी अपना फिटनेस चेक कर सकते हैं. एंड रोड सेफ्टी साइनेजेस एंड रोड मार्किंग्स जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ भी आप ये प्रोग्राम्स या ये महीने में आप एक्टिविटी कर सकते हो. Now there are the basic 3 E's of road accidents. So what are the 3 E's? That is, one is the engineering, and second one is the education, and third one is the enforcement. So what is engineering? Engineering यानी कि design of the roads या maintenance of the safe roads, then design of the vehicles and the traffic systems to reduce the chance and severity of the accidents. एक्सीडेंट्स घटने के लिए आपको रोड का डिज़ाइन इम्पॉर्टेंट है, एंड देन मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड द ट्रैफिक सिस्टम्स या ट्रैफिक सिस्टम्स कैसे कंडीशन में रखे हैं, एंड उसमें क्या क्या डिसिप्लिन्स रखा है, ये सारे चीज़ अपना इंजीनियरिंग कंट्रोल में आ सकते हैं. दैन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग टू ऑल रोड यूजर्स. Then they have to educate about the traffic rules and how to drive the vehicles. उसको हम डिफेंसिव ड्राइविंग बोलते हैं. तो सही तरीके से, सही ढंग से, बाय यूजिंग ऑल द ट्रैफिक रूल्स कैसे ड्राइविंग करना चाहिए, दैट कम्स इन द डिफेंसिव ड्राइविंग्स. एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर एक रोड यूज़र्स, या मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, या कोई बंदा गाड़ी चला रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द अदर्स.
और पासर्स बाय या अपने स्कूल के बच्चे लोग हैं या बूढ़े लोग हैं, तो उनकी केयर करना उनकी जिम्मेदारी पड़ता है। तो ये ऑल दिस कम्स इन द एजुकेशंस। एंड ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पीरियडिकल लेने चाहिए ताकि उसका जो अवेयरनेस है वो रिफ्रेश हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज़ द एनफोर्समेंट्स, दिस इज़ द लास्ट स्टेप्स। एंड उसके बारे में आपको स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैफिक लॉस एंड रेगुलेशंस जो भी है अपने हर एक कंट्री के या हर एक स्टेट के, तो उसके अनुसार दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द RTOs। उनको एक बार दो बार वार्निंग दे के अगर वो बंदा नहीं इम्प्रूव होता है तो देन वी हैव टू गो फॉर द डिसिप्लिनरी एक्शंस, या उसको पेनल्टीज बोलते हैं हम लोग। सो दिस ऑल कम्स इन द दिस रोड सेफ्टी अवेयरनेस या रोड सेफ्टी कैंपेन। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम नए नए वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षा।